This is Mount Bromo, named after the Hindu god of creation, Lord Brahma. From one epic viewpoint, you will see three volcanoes, the Bromo, the Batuk, and the Semeru. So amongst the three volcanoes, Bromo is the active, Batuk is the dormant one, and Semeru, it's the tallest in Java. This isn't just a volcano, it's sacred. But the Tengesi people still follows the Hindu rituals here. Inside Bromo's craters stands Ganesha's idol, centuries old, and it's known as the protector of the crater. As I've already mentioned that Mount Bromo is still active, and the last eruption that happened was on December 13th, 2023. When you hear about Indonesia, you think about Bali. But Indonesia has a lot of things to offer, and Mount Bromo is one of them. If you want to have a lifetime experience, then Mount Bromo is one of the places that you must visit. Now, if you guys are with me, then the easiest way to start this trip to Mount Bromo is from Malang. Now, you have two options to travel to Mount Bromo. One is the group tour package, and the other one is dirt bike or a scooty. In the group tour package, you'll get a jeep. I have mentioned all the pros and cons. And the other option is you can either rent a scooty or a dirt bike. I have also mentioned the pros and cons in the video. This is definitely more than a hike. It's a sacred adventure. Let me take you on a virtual trip with me. तो कुछ घंटों में अपना ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा. 12 बजे आ जाएंगे लेने. उसके बाद में अपना ट्रैक है. तो पैसे दिए हैं हमने 6 लाख इंडोनेशियन रुपीस. तो वो अराउंड 3500 रुपीज़ है. तो ऑनलाइन अगर मैं प्री बुक करके रखता तो मे बी मेरे को काफ़ी सस्ता पड़ता है. So right now we are waiting at this cafe to start our trek. It's almost 4 and we're going to start in 15 minutes. बढ़िया मस्त जैकेट खरीदा. 10,000 इंडोनेशियन रुपीज़ 50 रुपये का रेंट पे मिल जाता है. घर से लाने की ज़रूरत नहीं है. Tofu वाला खा रहे हैं फाइनली कहीं. No. Only tofu. Only tofu. Are you vegetarian? Yeah. Oh. This is tofu too. This is tofu. Fried tofu. Okay. Tofu. Yeah. Okay. Fried tofu. How much is it? 20,000. 20? 10,000. 10,000. Oh, 10,000 no in. Okay. Thank you. I forgot the name of it. तो फिलहाल सोल एक बंदे कोरिया के एक बंदे से बात कर रहा हूँ. बेंगलुरु का नाम सबको पता है. आईटी हब है ये सब. तो वही बात कर रहा हूँ. Oh, Ray. You don't know Ray? What is the full name? Le. Oh, Le. I'm from same state. I want to go there. It was like same state few years back. It is like mountains. Even I wanted to go. there. That's the one place I really want to go in India. Leh Ladakh. बढ़िया. This would have been a best Yeah. spot, you know. It's so close.
मत जाना, मैं चोर नहीं हूँ, मैं वही हूँ। ये बस रेत बहुत है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा ट्रैक है यार, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे लॉर्ड गणेशा का स्टैचू भी दिखेगा। तो इंडिया से इतने लाखों हज़ारों जितने भी किलोमीटर के बाद क्या दिख रहा है हमें, इट्स लाइक अमेजिंग। शिवलिंग और आगे शायद गणेश जी भी मिलेंगे। इट शोज लाइक हाउ ओल्ड द हिंदुइज्म इज। अमेजिंग, वाह। गणेशा स्टैचू, मतलब बहुत जोर की हवा है, इट्स जस्ट अमेजिंग। वोल्केनो जस्ट ऊपर ये बना है और काफ़ी इरप्शंस हुए हैं उसके बावजूद। इवन एक हिंदू टेम्पल भी है वहाँ नीचे, बट थोड़ा सा अजीब है, जैसे सिगरेट भी डाली हुई है, तो जूस सिगरेट कुछ भी रखे हुए हैं यहाँ पे। एक बढ़िया चीज़ पता चली कि जो ऊपर तुमने अभी लॉर्ड गणेशा का स्टैचू देखा, तो मतलब ये लोकल्स ने ही बोला, एक्चुअली उसकी रियल मूर्ति है वो चोरी हो गई है। मतलब सेम मूर्ति वैसी रखी है जैसी थी, बट जो ओरिजिनल है ऐसा उसने ऐसा कहा जाता है कि वो चुरा ली गई है। ये भी एक कहना, क्योंकि मेजॉरिटी वाला इशू में भी, बट मतलब लोकल्स ने जो बोला, पता नहीं गाइड वगैरह बोल रहे थे, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे हर एक लाइक रिलीजन वगैरह का लोग आए हैं, तो कोई वैसा दिक्कत नहीं। लाइक इट इज़ लाइक अनबिलीवेबल हाउ दैट स्टैचू इज़ देयर स्टिल नाउ, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, द व्यू। तो बट you should definitely book this tour package, it is amazing, worth it, और सब कुछ planned है, tour and guide and package and everything, jeeps वगैरह हैं, खाना वगैरह भी दे देते हैं, चाय वगैरह, सुबह से breakfast। now they'll drop us back to our hostel, फिर उसके बाद देखते हैं, अभी कुछ प्लान ही नहीं है कि करना क्या है, बाली जाना है, नहीं जाना है, या कहाँ जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सोए नहीं है पूरी रात से। तो हॉस्टल वापस आ गए, सुबह से कल से कुछ नहीं खाए हैं। अब यहाँ एक ही चीज़ ज़िंदा रख रही है मुझे, वो है ये वेज नूडल्स जो बनवाना पड़ता है, इसमें मीट चिकन सबको निकलवाना बहुत मुश्किल है। तो नॉन वेजिटेरियन हो तो ही आना, वेज वाले आना ही मत, कैंसिल कर दो। अब इसके बाद हमारी बस हमारी निकलेगी 6 o'clock, फिर से हमारे को 6 o'clock की एक और बस करेगी। बहुत ही अपने आप को दिल पे तसल्ली रखी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरी 6 बजे की बस छूट गई थी।